हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरे को नहीं आ रही है। हेलो सर। सर आवाज आई? कनेक्टेड है ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीबॉडी कैन हियर मी? यस सर। हाँ सर, आ रही है आवाज। वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम वाले कोई कुछ बोलो भाई, प्लीज से समथिंग। सब हेलो कुछ सर, बकबक कर। हाउ डू यू हेलो डू? हेलो हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आ रही है आवाज। नमस्ते सर, कैसे? सतगुरु अनम्यूट करके कुछ बकबक करना, कुछ बोलना। हाँ सर, बोला बोल रहे हैं हम लोग। शाउटिंग। सर बोल तो रहे हैं हम लोग। सुनाई दे रहा है। शाउटिंग। डिस्कनेक्ट कर दो। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहा है क्या? हाँ, बारह। अब आ रहा है। हेलो सर, हाउ डू यू डू? हेलो सर। हाँ हाँ। हेलो सर। आई सर। आ रही है सर आवाज? सर ने पहना ली। हाँ हाँ सर, अब सर आवाज आ आवाज आ रही है? रही है? हेलो। हाँ सर हाँ, रिकॉर्डिंग हो ऑन गया। है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। अबे सबको सबको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो I'll quickly go through this question. Should not be problematic. Okay, again, once again, let me tell you that when you are applying the equations of motion, all you have to do is write down the given values and then try to extract or try to understand or try to apply the four equations of motion. हो सकता है पहली बार गलती हो जाए, हो सकता है दूसरी बार भी गलती हो जाए, but eventually you will get the correct answer. So the question is question number कितना है? 6. Question number 6. So the question is that a particle starts moving and it starts moving with a constant acceleration and it हाँ, ये चैट विंडो थोड़ा ऊपर करना है ना मेरे को कुछ। हाँ, the point particle starts moving in a straight line with a constant acceleration. After time t naught, the acceleration of the particle is reversed, magnitude remaining the same. Determine the time from the beginning of the motion in which the particle returns to the initial position. मैंने
दिनेश सर से पूछा, उन्होंने कहा कि 2√2 है, पीछे 4 रॉन्ग दिया है सर दिनेश सर से बोल। पीछे आंसर रॉन्ग है हाँ सर, पीछे आंसर Wrong. रॉन्ग है, वो 2 प्लस सर रूट 14 नॉट है। 2 + √2 है आंसर। हाँ सर 2 + √2 आ रहा है। पीछे क्या दिया हुआ है? सर 40 नॉट। 40 नॉट। नहीं 40 नॉट। सर आप फिर √2 भी एक आएगा। बार करके बता दीजिए। हाँ हाँ मैं करके बता रहा हूँ, मैं करके बता रहा हूँ। तो what you have to do here is first understand what the problem is asking, right? So each and every word of the problem is important. Point particle जो हमने डिस्कस किया था, starts moving, that means the initial velocity is 0, moves in a straight line, okay, one dimensional motion with constant acceleration. Constant acceleration का मतलब हम equation of motion use कर सकते हैं, right? After time t0, after time t0, the acceleration of the particle is reversed. अब acceleration of the particle is reversed, magnitude remaining same. इसका मतलब कि अगर पहले acceleration plus a था तो बाद में acceleration minus a हो गया, okay? Irrespective of that fact, acceleration को बीच में change किया गया है और हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो तभी एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन अगर बीच में चेंज हो गई तब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप उसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकते। जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हुआ वो इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं तक वैलिड, उसके तो पार्ट बियॉन्ड 1 भी पार्ट 2 अगर करके हम हाँ अगर उसके बियॉन्ड भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कोई और एक्सेलरेशन है बट कांस्टेंट है, तो यू कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस पार्ट सेपरेटली एंड फॉर दिस पार्ट सेपरेटली, राइट? जस्ट लाइक वी डिड इन द लास्ट क्लास, वो जो d 2d और 3d वाला था। यस सर। So the particle starts from this point A, goes up to point B, and then its acceleration direction is reversed. Okay. Now, again, let me make it very clear that the concepts of acceleration and velocity that you have in your mind, or you may have in your mind, are still very primitive. Okay, they are not sophisticated enough for you to, for some of you they may be, but for most of you they are not sophisticated enough so that you can just look at the thing and visualize the motion. Okay, you will not be able to do that. So it is best to follow each and every word of the question and simply write down what is given in the problem instead of visualizing what is going to happen. आप ये A से B ऐसा आप बना सकते हो. This is the best you can do. So for the first part of motion, right, which is happening from A to B, the particle goes from a point A to point B. What have I been told? I have been told that the initial velocity is 0. I have been told that acceleration is constant, so I will assume the value of acceleration, right? Remember, I told you that if something is not given, then you are going to assume the value. And in the final answer, of course, this assumed value should not be there. So A is equal to plus A, and then they have given the time of travel as T0, okay? And S also we don't know. So what I will do is, सर मतलब आपने एक ही सोचा कि हम एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक्सेलरेशन इनको t0 के टर्म में या और s को a और t के टर्म में, मतलब t0 के टर्म में सर हम कर ये सकते हैं। इंफॉर्मेशन यूज करके हम v फाइंड करेंगे ना, जो नेक्स्ट पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी बनेगा। आत्विक का क्वेश्चन ये है कि A क्यों अज्यूम किया, S क्यों नहीं अज्यूम किया? मैंने A नहीं, मतलब इसलिए सर हाँ, assume मेरा किया, क्वेश्चन है कि हम a को t के टर्म्स में मतलब कोई फॉर्मूला लगा के ला सकते थे ना, तो हमने नहीं ला A के सकते हैं ना, नहीं ला सकते हैं। ठीक है सर। तो आपको केवल U दिया है और T दिया है ना, हाँ और तो सर। कुछ नहीं दिया।
सर या फिर हम s को s सब्स्टिट्यूट करके फिर t के टर्म मतलब a को ला हाँ सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेश्चन मार्क आई कैन राइट प्लस एल, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, राइट? ठीक है सर। प्लस एल। तो what can I now find? Well, the first thing that I can find is also सर assume- वेलोसिटी हाँ, ठीक है सर। I can find v, which is u plus at, and I will get this as at naught, 80 not, yes sir। and s, which is plus U. l. I don't know whether this plus l will be used or not. Okay, I'm just writing it. Sir, 80 not. ut plus half ut 80 plus ut plus half half 80 80 square, square, and this will be u equal 0 to हो how गया, much? half 80 not half का 80 square, not squared. Half 80 naught square. यस सर। yes sir। Now, for the second part, सर यू विल बी 80 नॉट। u will be 80 not, हाँ हाँ। हाँ, second part में u will be equal to plus 80 naught, a will be equal Minus to a. minus a. minus a, ठीक है ना? T we have to find out. I don't know what T is. And I also सर फाइनल know वेलोसिटी जीरो final होगा। velocity will be that- 0 as it stops। नहीं, final velocity will not be 0. I also know that s will be equal to minus l. Never ever assume that the final velocity will be 0. Never, unless But- you are absolutely sure or it is written in the question that the particle comes to rest. So s is equal to minus Sir, L if we make the path, we can see that at the last point v equals to 0. सर क्वेश्चन में बस लिखा है कि वो इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न करता है, ऐसा नहीं लिखा है कि स्टॉप हो जाता है। हाँ सर। हाँ वही, हाँ सर, stop नहीं एक्चुअली बोल रहा है ना। करता रहेगा क्योंकि बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड्स अरे वो जो भी करता रहे, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे विजुलाइज करना ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। सर वेयर कैन आई एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स? ये रिकॉर्डिंग के लिए प्लीज गीता मैम को बोलिएगा। गीता मैम इज अपलोडिंग सर व्हाट्सएप पे डाल देते हैं लेक्चर्स के बाद। डालते हैं ना? हाँ सर। प्राप्ति देख लेना एक बार ग्रुप। सर लास्ट क्लास का डाला नहीं था। सर पर नेगेटिव एक्सेलरेशन में तुरंत थोड़ा ना मैं पीछे कर जाएगा, रहा वो हूं, थोड़ा करवाता हूं। आगे जाके पीछे होगा ना। क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स करने पे वो तुरंत थोड़ा ना पीछे जाएगा, वो थोड़ा आगे जाके पीछे आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ लेकिन मेरे को विजुलाइज करना ही नहीं है, मुझसे कोई सर लेना आपने देना ही नहीं माइनस है एल उसका। इसलिए लिया क्योंकि वो पीछे जाता है ना नहीं, particle। मैंने माइनस एल इसलिए लिया है क्योंकि सेकेंड पार्ट में मेरे को ये मालूम है, सेकेंड पार्ट मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? यस सर। सेकेंड पार्ट मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? और सेकेंड पार्ट वाला मोशन खत्म कहाँ हो रहा है? खत्म का मतलब ये नहीं कि वो पार्टिकल रुक गया। सर ए पे खत्म का मतलब, हाँ खत्म का मतलब कि हमें किस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। So they are asking, the question is saying that at this point the acceleration is reversed. Find the velocity when the particle reaches its initial point. सर एक Right. चीज ओके पूछ, सर अंडरस्टूड। हाँ, सर जो अपना ऑब्जेक्ट है वो Minus a to b एंड वापस b to a आ रहा है, तो फर्स्ट केस में हम मेरे लोग को नहीं v- मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को कुछ अच्छा। नहीं मालूम। मेरे को बस ठीक ये है, मालूम ठीक। है, मेरे को बस ये मालूम है, a particle starts from rest with constant acceleration, reaches a point where the acceleration is reversed, and I have to find the time when the particle reaches its initial position. So if I am taking the first part as A to B, then necessarily for the second part, the boundaries must be, the starting point and the end point must be B to A. ये सर सबको जैसे समझ में हमने आया कि लास्ट नहीं? क्लास की, माइनस एल कैसे आया था आपका? हाँ अरे सर तेरे को जो मैं बोला वो समझ में आया कि नहीं? सर ऐसे माइनस एल नहीं समझा सर मुझे। अरे जो मैंने वेदांत अभी वही बोला वो तेरे डिस्टेंस को समझ वापस में आया ट्रैवल कि कर नहीं? रहा है ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस वो रिवर्स है इसलिए Direction minus change डिस्टेंस कर से रहा का है ना, मैग्नीट्यूड तो minus कहाँ, L हो क्या जाएगा। बोल रहे हो बे तुम लोग? क्या हो गया है? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, हाँ सॉरी। हाँ सर वो गलती से। हाँ।
वेदांत जो मैंने अभी बोला है वो समझ में आया कि नहीं, या तूने अपना स्विच ऑफ कर लिया फिर से दिमाग? समझ गया वो क्या आपका समझा, क्या बोला मैंने अभी? वो एल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए वो माइनस एल। अरे मैंने एल की बात ही नहीं करी है। मैंने अभी क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट में यू जो प्लस 80 नॉट होगा, क्योंकि कि वो जो उसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसका फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट का वो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा सेकंड पार्ट का। पता नहीं क्या बोल रहा है, बैंगन का भरता बना के बोल रहा है। सबको ये समझ में आ रहा है दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन इज फ्रॉम ए टू बी एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मोशन इज फ्रॉम बी टू ए? यस सर। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। हाँ सर। वो बी टू ए कैसे जा रहा है? क्या वो इमीडिएटली पलट गया? क्या वो दूर जाके वापस आया? मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू केयर। ओके, इफ समबडी आस्क्ड मी कि अच्छा बताओ अब ये बी से कितना आगे जाएगा, वहां पे रुकेगा, देन आई वुड हैव केयर। बट रीड द क्वेश्चन, डोंट ट्राई टू विजुअलाइज। ओके, डू नॉट ट्राई टू विजुअलाइज इन योर हेड कि क्या होने जा रहा है। Read the question, write down what is given, apply the equations of motion, and that will lead you to the solution. If you do anything else, you will get confused. Okay, now if the first part is from A to B, right, then I go back and I think कि अरे डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ये होएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट पार्ट। ओके, and when I talk about displacement for the second part, again it will be a vector drawn from the initial position to the final position. So this is the initial position, this is the final position. So a vector drawn from the initial position to the final position will be, okay, this will be the displacement vector for the second part. Now this is the difference between class 10th and class 11th. Class 10th mein, you were not really bothered about displacement and distance. You were not bothered about the difference of displacement and distance, right? S का जो टर्म आता था आप उसको इनवेरिएबली डिस्टेंस लेके चलते थे, उसको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहां पे यू हैव टू बी केयरफुल, यहां पे S भी वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहां पे s is same as velocity, acceleration, because it is a vector quantity. So you need to write down not only the magnitude, you also need to write down the direction. Please notice मैंने सब पे प्लस प्लस माइनस प्लस सब लिखा, except time. Time is a scalar quantity. तो ये आदत बहुत ही अच्छी है कि अगर हम जब क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो वी राइट प्लस माइनस। ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्लस नहीं है तो प्लस लिखा ही नहीं, छोड़ दो, हटाओ उसको, ऐसा नहीं। राइट प्लस, रिमाइंड योरसेल्फ ऑलवेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो इफ दिस एरो, ऊपर वाला एरो, दिस ऊपर वाला एरो इज प्लस एल, तो नीचे वाला एरो मस्ट बी, नीचे वाला एरो मस्ट minus L. minus L. Okay, this displacement from B to A should be negative Minus. of, again I'm saying negative of, what I really mean is, I don't mean, I'm not talking about numbers, I'm talking about vector quantities. So what I mean is that the direction of displacement of the second part is opposite to the direction of displacement of the particle in the first part, and their magnitudes are the same. Okay, and we are going to use this abhi aaj wali class. So S is equal to minus L, right? So now I want to apply S is equal to ut plus half at square.
S is equal to ut plus half at square. Sir, at point B, the किसी को speed कोई should डाउट also be होएगा प्लीज मेरे को बोलना, और गीता मैम को फोन करना प्राप्ति आज, है ना, वो बोलना मेरे को नहीं मिला है वो लेक्चर कल का लास्ट क्लास वाला. So S will be equal to how much? Okay, please notice what I am doing. S will be equal to how much? S will be equal to how much? ये था ना S पहले पार्ट में, Yes, sir. minus Minus of that. half AT naught square is equal to initial velocity क्या है? Plus AT naught. AT naught. 80 not. AT naught into T plus half, sorry, minus half Minus half AT square. 80 square. minus 80 half square. 80 square. Okay, because A की वैल्यू माइनस है, तो मैंने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया? S is equal to minus half 80 naught square and U का वैल्यू प्लस 80 naught, A का वैल्यू माइनस है, मैंने सब सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब क्या चीज कैंसिल हो जाएगी? A A कैंसिल cancel हो हो जाए, जाए. which हाँ, is very cancel good होगा, हाँ. because A Sir, was 2 भी assumed. cancel. A assume किया था That should मैंने. not come in my answer, right? Sir 2 भी Sir, हट जाएगा. At B, the speed should be 0. No, it should not be 0. At B, the speed is this. so, but at B it will turn Okay? right. At B, the speed is this. The final velocity of this point, final velocity of this part must be equal to the initial velocity of the second part. Velocity cannot change instantaneously, right? This is one of the pillars of motion. Velocity cannot change instantaneously. Multiply throughout by 2 and rearrange. 2 I भी get cancel हो जाए. t square Minus 2 minus T naught T. 2 t naught t minus T naught squared. t naught square is equal to 0. Is This equal is a to 0. quadratic equation, a very, very simple quadratic equation which you have to solve with the formula or with factorization or whatever method you feel comfortable. So t will come out to be what? You have to be careful about the roots. You cannot take the negative root. You have to take only the positive root. Okay? क्या आएगा इसका root? तब 1 आएगा, plus minus what will root be 2 the आएगा, हम लोग 1 plus root 2 लेंगे. सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर आवाज नहीं आ रही. सर नहीं सुन सकते. सर आ रही है आपकी आवाज. आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर. हाँ सर आ रही है. सदगुण, you are speaking. सर मी मुझे टू. क्यों नहीं आ रही आवाज? भाई खेलना बंद कर दे, फ्री फायर खेलते रहे, बस की नहीं है पबजी. इसको बंद कर. ये दूसरा खरीद के लाना अगले. पता नहीं, छोड़ो. Write the answer. कितना आएगा? Write the answer in the chat window. नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को. 1 plus root 2 t naught. So t naught 1 plus okay, but this is the time for the second part, and they are not interested in the time for the second part. They said that we want to find the time when the particle reaches the initial point from the beginning of motion. So the time therefore must be
फर्स्ट पार्ट का टाइम प्लस सेकेंड पार्ट का सेकंड टाइम, पार्ट का टाइम, यस सर। which is equal to 2 t naught plus root 2 t naught. Sir, can you hear us now? सर आवाज आ रही है? 2 plus नहीं, root 2. नहीं आ रही सर। सर ने वो जाएगी, निकाल headphone- दिया So it's not नहीं audible. पहना है ना। निकाल दिया। लगाई नहीं। मैं बोलना नहीं है, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो Can सर। sir हेलो like सर। किया था क्या उसमें? can sir read the chat? तो क्यों अचानक से यार? हाँ सर चैट पढ़ हाँ सकते सर, हैं चैट पढ़ सुनिए। सकते Chat हैं। हाँ chat Yeah. में डाल दो I think. That सर should ने work. माइक ही निकाल, हेडफोन ही निकाल दिए। हाँ तो हाँ। chat में डालो ना, you can at least read the chat. हाँ हाँ डाल दिया डाल दिया। हेलो सर। रुक जा, सब सर हेलो बोलेंगे तब। हाँ exactly. हाँ नहीं, इसमें बोल रही है कनेक्टेड। सर रिवाज। हेलो। Hello. नहीं फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है. स्पीकर वाला जो बना है ना तो नीचे, हाँ 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 भाई, अब कुछ बोल सकता हूँ? हाँ सर, हेलो आ रही है सर। आवाज। हाँ सर हेलो सर Hello, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ 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 सर। हेलो आ रही है सर। आवाज? हाँ Okay. सर आ रही है हाँ आवाज। हाँ आवाज आ रही है। सर हाँ सर 13th क्वेश्चन में सर छोड़ रिएक्शन दे, टाइम अब टच मत कर, टच मत कर, छोड़ दे उसको। हाँ सर आपको t कुछ t नॉट 1 प्लस रूट 2 का सा। अबे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया भाई, बस वो क्वाड्रेटिक याद पॉजिटिव है? रूट ली। हाँ केवल पॉजिटिव रूट लेंगे ना, नेगेटिव रूट क्यों लेंगे? सर सर 13 में रिएक्शन टाइम क्या होता है सर? 13 क्वेश्चन में कुछ रिएक्शन रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है वेदांत? सोचना, क्या होता है रिएक्शन टाइम का नाम? मतलब रिएक्ट करने में कितना कुछ टाइम भी लगता चेंज है? नहीं किया। हाँ वेदांत, हाँ सर। रिएक्शन टाइम क्या होता है? सर कोई भी काम करने के लिए कुछ जो टाइम चाहिए लाइक मिनिमम, वो स्टेप का ऐसा कुछ है क्या? तेरा रिएक्शन टाइम कितना है? इसको उधर कर, ये आकाश चैट विंडो उधर कर और ये लोगो हटा। हाँ तो जब वो देखेगा उसके बाद से उतने टाइम के बाद वो ब्रेक लगाएगा, ये वो बोल रहा है। मतलब देखने हाँ टाइम रिएक्शन टाइम मतलब उसको सोचने में टाइम लगता है उसके, और उतने टाइम तक वो कुछ करेगा। हाँ मतलब जब वो देखता है और जब ब्रेक लगाने के बीच का टाइम रिएक्शन टाइम होगा क्या इसका मतलब? हाँ भाई, तू गाड़ी चला के कुछ आएगा तेरे सामने तो अचानक ब्रेक नहीं मार देगा ना, जैसे ही आया वैसे ही ब्रेक नहीं मारेगा ना, कुछ टाइम लगता है ना। तो सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना 13th वाला? बस टाइम टेकन को रिएक्शन टाइम के साथ ऐड कर दें। ऐड कर देना है टाइम को, और क्या, टोटल टाइम ही तो निकालना है ना। तो बी वाला Okay. पार्ट करके बता सकते हैं सर, और कैसे करना है एग्जैक्टली नहीं समझ रहा। कौन सा बी वाला? कहाँ हो तुम लोग यार? सर मैं ये आगे सर नहीं एक्सप्रेशन 13 क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, लास्ट वाला क्वेश्चन का लास्ट। तो ऐसे बोल रहा है जैसे क्वेश्चन मुझे रटा हुआ है। तूने बोला 13 क्वेश्चन का बी पार्ट तो मेरे को याद आ गया, 13 क्वेश्चन ये था। मेरे को क्या मालूम 13 क्वेश्चन क्या है? हाँ सर मैं बताता हूँ सर। नहीं मत बताओ, बाद में बताओ, पहले मेरे को ये खत्म करो। So we want to talk about motion under gravity, right? This is very important because the next chapter is basically based on this. So this is very, very important. And it is also important because there is a couple of misconceptions that you have in this chapter, which we must address and correct. Okay, so what do I mean by motion under gravity? I mean that the particle So only under the acceleration due to inflation of gravity is gravitational acting on it. particle moves only in
the influence of gravity. Now, please remember that gravity is being generated by what? Mass of the earth. Gravity is being generated by the earth. So gravity is attracting everything towards the center of the earth, right? So if I drop the pen is going down because of the fact that the earth, which is a 6,400 kilometer radius ka sphere, it is attracting this pen, and the pen is going down. Pen is moving towards the center of the earth. And we also know that the acceleration due to gravity, okay, acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square Sir, downward. Yes. Okay, or I can write towards the center of earth. सर एक डाउट है हाँ, सर जब अगर हर चीज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से मूव करती है तो जो रेन ड्रॉप्स है वो हमें बुलेट की हाँ। तरह लगने चाहिए थे नहीं लगते हैं क्या तेरे को? अरे आदमी नहीं सर। एयर भी तो है, ड्रैग वगैरह सब कुछ होता है, बहुत सारे हैं। हम लोग सिर्फ इधर ग्रेविटी कंसिडर करते हैं, बट बाकी सारे फोर्सेस भी तो है रियल लाइफ में। ये हम ठीक है सर। जब फ्लूइड का चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो हम इस चीज को डिराइव करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो फ्रिक्शन होता है, विच इज प्रोवाइडेड बाय एयर, it is directly proportional to the velocity of the object which is moving through the air, right? ओके सर। That is why जब meteors और meteorites आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जल जाते हैं आगे। वो सब जो है वेपराइज हो जाते हैं। सरफेस एरिया होना चाहिए ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन। सर वो हाँ, ग्रेविटी के surface कारण वो area होना वेपोराइज हो चाहिए। जाते हैं क्या? नहीं बे, फ्रिक्शन की वजह से। फिर तूने अपना ऑफ कर लिया दिमाग, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। friction due to air is directly proportional to the velocity of the object. तो जब meteorite आता है इसमें एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एयर भी बहुत ज्यादा होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से उसको रेजिस्टेंस टू मोशन मिलता है, right, which generates the heat, which vaporizes the meteor or meteorite, right? That is why we cannot fly planes at very high velocities, because then friction would be so large that the power which is required to move would become very, very high. तो जो raindrops ऊपर से आते हैं नीचे, raindrops when they begin to fall, their velocity is very less, so resistance is very less, so they develop a large velocity. But then as they increase the velocity, the resistance also starts to increase. And when we do properties of motion, I will prove to you that they ultimately achieve something called a terminal velocity. And in this terminal velocity, the force of resistance and the force of gravity become balanced, and the velocity does not change anymore. Okay? तो आद्विक बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर 2 किलोमीटर से बारिश गिर रही होती और अगर एयर नहीं होता, तो फिर we would not be able to survive. फ्रिक्शन ड्यू टू एयर की वजह से हीट हो जाता है। हाँ, फ्रिक्शन ड्यू टू, हाँ, विस्कोसिटी also plays a role. Yes, it is called drag. Yes, it is called drag. सर फिर ऐसे ही सर उसने पार्ट में बोला कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा फिर रेजिस्टेंस होगा, राइट? हाँ हाँ सर तो जो हेल स्टोन्स होते हैं उसके पास तो और भी सरफेस एरिया होता है, फिर वो हाँ। रेन ड्रॉप से स्पीड से क्यों नीचे गिरते हैं? क्या क्या? सर जो हेल स्टोन्स होते हैं, हाँ 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 सर, उनके पास तो ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना एक रेन ड्रॉप से। हाँ हाँ सर तो उन पर तो ज्यादा रेजिस्टेंस एक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो हाँ। बहुत जोर से नीचे गिरते हैं।
अबे वो तेरे को लगता है ना जोर से नीचे मोमेंटम गिर है ना mv, वहां से धीरे ही गिरते हैं बट लगते हैं बहुत जोर से। अच्छा बारिश का पानी तेरे ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप गिरेगा उस वेलोसिटी से और पत्थर मारूंगा उस वेलोसिटी से, दोनों में फर्क है ना। अच्छा अगर ठीक है ईंटा गिरा दूंगा तेरे ऊपर उस वेलोसिटी से फिर ठीक है सर ठीक है फ्रिक्शन विद प्रेशर गेट्स प्रेशर। हाँ प्रेशर प्रेशर की बात अभी नहीं कर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कुछ फर्क पड़ता होगा ना रेन। मैंने अभी बोला ना प्रेशर की बात नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, but I will take it always as 10. When you solve a problem, you should look at the problem and you should confirm whether that problem is taking g as 9.8 or 10. If nothing is given in the problem, you will take g as 9.8. But if I give a problem here, by default, you will take g as 10. Okay. Okay, sir. Okay, so this is very important. This is very, very important. The direction of gravity. So what we will do is we will throw a particle up in the air with a velocity of u naught, and the particle will go up and then the particle will come down. After Now, attaining a maximum height, it will come down. हाँ, अब ये दोनों डॉटेड लाइंस जो है मुझे एक्चुअली एक के ऊपर एक ही बनाना चाहिए था, बिकॉज पार्टिकल एक ही लाइन पे जा रहा है और उसी लाइन पे रिटर्न हो रहा है, बट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पसेस मैंने दोनों को अलग किया। तो यहाँ पे जो ये कर्व दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है दैट द पार्टिकल इज गोइंग इन दिस कर्व, द पार्टिकल गोज अप एंड द पार्टिकल कम्स डाउन। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पसेस आई हैव शोन that this is the part where the particle is going up and this is the part where the particle is going down. Okay, now I will divide the motion into two parts. Okay, should I divide the motion into two parts? When should I divide the motion into two parts? Should I divide the नहीं motion? सर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तब हम हाँ सर जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तब हम डिवाइड करेंगे। हाँ। It depends on what we want to find. Maximum height ढूंढनी है तो 2 parts लेना पड़ेगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा। सर, अगर मेरा हम लोग क्वेश्चन सर height से एक्सेलरेशन वो चेंज हो रहा है तो हम उतने पार्ट्स में मेरा- डिवाइड उतने करेंगे। पार्ट में हाँ चेंज करेंगे। मेरा क्वेश्चन is related to this question that we did. Okay. सर जैसे इसमें दो बार सर, एक जैसे हमने बार कोई एक्सेलरेशन BTC चेंज हो ऊपर रहा है इसलिए दो फेंकते पार्ट में हैं, डिवाइड। तो हम लोग मैं इसलिए मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेज करता हूं, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, इसके लिए ऊपर गया नीचे आया। Does the acceleration of the particle change? No sir. Does the acceleration of the particle change? नो सर। चेंज हो रहा है सर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, इसलिए change हो रहा डायरेक्शन है। चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना। सर बट पिछले पार्ट में भी मैग्नीट्यूड सेम था पर डायरेक्शन अलग था, तो हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर तो अभी भी ऊपर जाते वक्त सर हम करेंगे एक सर पार्ट क्योंकि लेंगे और नीचे एक्सेलरेशन जाते वक्त वेक्टर दूसरा पार्ट क्वांटिटी लेंगे, है। हाँ ऊपर जाते क्योंकि वक्त डायरेक्शन एक्सेलरेशन भी किधर है? डिपेंड। तो ऊपर जाते वो सर positive ऊपर होना जाते वक्त नीचे सारे की तरफ पॉइंट्स है। पे नीचे ही लगता है सर। नहीं, पागल है क्या? ऊपर जाते वक्त किधर है? कहाँ है एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड्स ही होगा ना सर। सर 9.8 से तो डाउनवर्ड्स ही है। और नीचे सर आते ड्यू टू वक्त ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डाउनवर्ड। अरे एक मिनट रुकना सदगुण यार। हाँ, ऊपर जाते वक्त किधर होएगा एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड। Downwards. और नीचे आते वक्त किधर होएगा? डाउनवर्ड। Downwards. डाउनवर्ड्स। अभी तो बोला चेंज हो जाएगा। किसने बोला था चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होएगा। वेदांत ने भी बोला चेंज होएगा कि नहीं होएगा? सब ऊपर जाते वक्त तो वो, लेकिन ग्रेविटी तो अट्रैक्ट, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके अर्थ के अपोजिट तो डायरेक्शन में जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा साइड। नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये पार्टिकल यहां से चला और यहाँ पे वापस आया। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। क्या इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज हुआ बीच में या नहीं हुआ? बस हो गया सर।
होगा या नहीं होगा? यस और नहीं नो? होगा होगा सर। सर, यस सर होगा। इसमें एक फीचर होता है जो सर, मेरे नहीं हाथ होगा। में अभी है नहीं। पोल पोल कर सकते हैं। सर पार्टिकल का चेंज होगा बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। हाँ वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। क्या क्या? वेलोसिटी सर चेंज पार्टिकल होगी का टाइम acceleration मैं change टाइम। होगा ना? वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल एक्सेलरेशन की तो बात कर सेम सेम रहेगा सेम एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होगा। सेम ही रहेगा। चेंज होगा ना। यूनिफॉर्म। सर आप acceleration of the particle पूछ रहे हो ना? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द हाँ तो पार्टिकल सर ड्यू उसमें टू चेंज सेम होगा ग्रेविटी। ना? अच्छा, रहेगा। चेंज चेंज होगा। होगा। चेंज होगा, सर एक्सेलरेशन इवेंचुअली चेंज जब हम होगा। पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तब वो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ओवरकम करके ऊपर जाएगा, एंड फिर जब एंड में है तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा। तो बेसिकली जब सपोज हम फर्स्ट पार्ट को ले रहा है कि ऊपर जा रहा है, सेकंड पार्ट को ले नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन स्लोली स्लोली पार्टिकल का रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो एट अ स्टॉप आ रहा है, मतलब वो डीएक्सेलरेट हो रहा है काइंड ऑफ। सर तो ऊपर जाते वक्त माइनस में रहेगा और नीचे सर आते वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तब लगता है जब कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स कोई लग ही नहीं रहा क्योंकि वो फिर तो हाँ, सतगुण, हाँ। फिर अकेला चुप, ऊपर जा रहा है। सतगुण। सर पलाश तो बोल रहा था पलाश सर। अच्छा, पलाश। पलाश बोल रहा है, सॉरी। बट फोर्स तो लग रहा है ना ग्रेविटी। हाँ हाँ, पलाश बोल बोल। अब पलाश चुप हो गया, सर बोल ऊपर ना। जाएंगे तो प्लस जे कैप होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्शन लो, तो आ गया मतलब वेदांत अब। मतलब पॉजिटिव होता है, हाँ। नेगेटिव और जब नीचे जाते सब नेगेटिव होता है ना क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से। अच्छा, कन्वेंशन तूने बनाया क्या? वेदांत कन्वेंशन है क्या ये? सर कन्वेंशन मैंने नहीं सर, ये ऑलरेडी डिफाइंड है ना सर कि जब किसने ऊपर जाते बनाया है ये? कौन है जिसने बनाया है? मेरे को सामने लेके आ, कौन है? नाम बता। मुझे क्या लगा कौन। Okay, so this is the misconception that I was talking about. Okay, please never be confused by this. The answer is no. The answer is that acceleration does not change. यस सर, सही बोल रहे थे आप। Acceleration does not change. Now you have a point. ये ऊपर जा रहा है, जब नीचे आ रहा है तो ऐसा वैसा, राइट? तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, अर्थ तो ये रहा, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो अर्थ किधर है? जब ये पेन ऊपर जा रहा है तो अर्थ किधर है? नीचे की तरफ। नीचे। वही है ना? तो जो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्शन है वो तो ऐसे ही है। और जब ये पेन नीचे आ रहा है तो अर्थ किधर है? नीचे ही है। नीचे ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही है, राइट? So therefore acceleration does not change. Acceleration is constant throughout this motion. इस पेन के मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब इसने मेरे हाथ को छोड़ा और वापस मेरे हाथ में आया, इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। ओके, देन व्हाई इज दिस थिंग इन योर हेड कि एक्सेलरेशन चेंज होता है? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है नहीं, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है समथिंग, सम वियर्ड थिंग यू हैव इन योर हेड, राइट? So I want to again clear that up. So I will divide the motion into two parts, but not because acceleration changes. I will divide the motion into two parts because I want to study separately the part in which the particle is going up and the part in which the particle is going down, and I want to derive certain results which I do not like to use the word, but these results which we derive today, they have to be remembered by you. Okay, ये आपको याद रखना। Okay, so give me 2 minutes, we'll clear the board and then we'll continue. ठीक है ना? तब तक ये लिखो, write this down please.
हाँ, so to explain this, I have actually drawn the diagram already in that PDF. PDF में एक डायग्राम है जहाँ पे एक कार्टून कैरेक्टर है, वो कार चला रहा है. हाँ सर, वो डोनट मैन. एंड हाँ, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे व्हाट हैपेंड, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन. सी दिस एंड अंडरस्टैंड. Okay, so V is equal to U plus AT. What do you understand by this? Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times of time. तो तूने पढ़ दिया इक्वेशन को, लेकिन अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये इक्वेशन मुझे ये बता रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर होएगा, दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. हमारे पास एक वेक्टर होएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर. हमारे पास एक स्केलर होएगा, टाइम. मैं इस स्केलर को इस वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करूंगा. जब मैं टाइम, स्केलर टाइम को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर से मुझे वेक्टर मिलेगा. ये वेक्टर का डायरेक्शन वही होएगा जो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन है, राइट? प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स वी आर कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव टाइम, व्हिच वी विल. सो इफ द acceleration vector is multiplied by a positive number, this means that we will end up with a vector which will have the same direction as the acceleration vector. The magnitude, of course, will be different depending on what is the value of t. Now, if I add these two vectors, I get the final velocity vector. Okay? Now, suppose that the initial velocity vector is like this. Suppose that the initial velocity vector is like this. And further suppose that the acceleration vector is like this. So this is the acceleration vector and this is the initial velocity vector, right? This is the situation at time t is equal to 0. This is the location of the particle. Okay? So this is the location of the particle at time t is equal to 0. So let me draw an arrow like this. This is the location of the particle at t is equal to 0. Please notice that मैंने acceleration vector separately बनाया, because I want you to understand that this acceleration vector is there, but it is due to some external factor. In this case, the external factor is the Earth. Okay. So this is the location of the particle at t is equal to 0, and this is the initial velocity vector of the particle, right? Now, let's say that at time dt, very, very small period of time, has gone past. अब क्या हुआ इस dt टाइम इंटरवल में? तो इस dt टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहां पे आ गया. This is the location of the particle at t is equal to dt, right? Because velocity है ना उसके पास ऊपर की तरफ, तो ये पार्टिकल. हाँ भाई वेदांत, इसमें दिक्कत है ना तेरे को? सर लेकिन आपने कहा था ना कि डीटी में हम लोग कुछ कर नहीं लगा, हम लोग निकाल नहीं सकते डीटी में क्या, वो हम लोग नहीं बता सकते, तो फिर आपने कैसे लाइक प्रेडिक्ट किया? अबे उसके बाद तो बता सकते हैं ना फिर. मैंने कहा बीच में कोई डॉट बनाया है क्या? बीच में कोई डॉट बनाया है मैंने? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या लिखा है यहाँ पे? लोकेशन ऑफ पार्टिकल. हाँ बस. एट t is equal to 0. और यहाँ क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ पार्टिकल t is equal to dt. तो dt/2 की मैंने बात कहाँ करी? बीच की बात मैंने कहाँ करी?
ओके सो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, लेकिन इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? लोकेशन तो मुझे दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, इसलिए ये पार्टिकल इधर से इधर पहुंच गया। वेलोसिटी क्या करता है? वेलोसिटी चेंजेस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन चेंजेस द वेलोसिटी of the particle. right? So changing the velocity will subsequently lead to changing the position, right? But there should be a separation in your minds. Velocity is responsible for the change in position, and acceleration is responsible for change in velocity. Acceleration is not responsible, at least directly not responsible, for change in position. So the particle changes its position from this to this because of the initial velocity u. But as the particle reaches this point, because of the acceleration, the velocity of the particle has also changed. How has it changed? That is what we are here to figure out. So we are going to add two vectors. One is the vector u. One is the vector u. And the other is the vector a multiplied by time. But since the time interval here is extremely tiny, it's an extremely small number, therefore when I multiply this extremely small number to this vector, I get a vector in the same direction, but its magnitude is very, very tiny. So I get a dt. Okay, this is the vector u, this is the vector a dt. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होएगा? What will I get? इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होएगा? What will I get? I will get a vector which will be the final velocity vector. और ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होएगा? What will be the direction of the vector and what will be the magnitude of the vector? It will be in the same direction as the डायरेक्शन तो initial यही vector. रहेगा, हाँ डायरेक्शन तो यही रहेगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होएगा वो थोड़ा सा बहुत ही टीनी टाइनी 8 times dt. कम हो गया। ये आया समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, इस sir. पॉइंट पे जब ये पार्टिकल आया तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ये ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी से थोड़ा कम हो गया। अब चूंकि वेलोसिटी अभी भी ऊपर है, इसलिए ये पार्टिकल की पोजीशन अब इधर आ जाएगी। So this is the location of the particle at t is equal to 2 dt, right? लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां क्या ऐड कर रहे हैं हम? इसी वेक्टर से, ये जो वेक्टर है t is equal to dt, इसी वेक्टर से फिर से a dt ऐड होएगा। क्या मिलेगा हमें? What will I get? I hope everybody is following me. So ये velocity vector at t है। हाँ बोलो। सर आपको लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 dt कैसा है वो नहीं समझा। अभी भी वेलोसिटी ऊपर है ना, t is equal to dt पे। हाँ वेलोसिटी ऊपर है तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? वेलोसिटी ऊपर है तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? अपवर्ड्स। तो अब गया, ऊपर चला गया। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर है इसलिए यहां आया, यहां पे भी वेलोसिटी अपवर्ड्स है इसलिए यहां आया, और यहां पे भी वेलोसिटी किधर है? अपवर्ड्स। अभी नेक्स्ट पे कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। 3 dt हो जाएगा नेक्स्ट में। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम 3 dt हो जाएगा। अगर आप ये जो बना रहे हैं वो डिस्प्लेस ये लोकेशन वेक्टर होगा ना? लोकेशन वेक्टर कोई चीज नहीं होती है। मैंने लोकेशन वेक्टर कुछ नहीं बनाया। पोजीशन वेक्टर मैंने पोजीशन वेक्टर कहीं नहीं बनाया। मैंने केवल वेलोसिटी वेक्टर्स बनाए हैं
ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये ए डी टी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये ए डी टी वेक्टर। फिर से मेरे को समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा। ये एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय dt added to this velocity vector will give me the final velocity vector. So if the initial velocity vector is like this, acceleration is like this, then a dt will be a very small vector in this direction. And when added to this initial velocity vector, this will give me a vector in the upward direction only, but with a slightly smaller magnitude. This is the velocity vector at t is equal to 0. This is the velocity vector at t is equal to dt. And this is the velocity vector at t is equal to t plus t is equal to 2 dt. तो जो velocity vector है particle का, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, छोटा 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 होता जा रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि ए डी टी रिलेंटलेसली नीचे, ए डी टी हमेशा ये वेक्टर है, हमेशा ये ए डी टी है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से ये ऐड करेंगे, छोटा हो गया थोड़ा, फिर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है फिर उससे ऐड होएगा, फिर से छोटा हो गया ये, फिर इससे फिर से ये ऐड होएगा, नेक्स्ट Sir, eventually it will become zero, हो जाएगा, इवेंचुअली इट विल बिकम जीरो। वो छोटा कैसे समझा नहीं मुझे, लाइक वो एडीटी ऐड करने में छोटा कैसे हो रहा है वो? डायरेक्शन अपोजिट है ना। हे भगवान, मेरे को वेदांत सही में रात में कभी कभी सपना आता है कि तुम मुझसे पूछ रहा है एबीसीडी क्या होता है। सर ये एबीसीडी क्या है? तो मैं जग जाता हूँ पसीने पसीने होके, ये क्या पूछ रहा है? ये वेक्टर वेदांत 50 है और ये वेक्टर 5 है, दोनों को ऐड किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 45। अरे ये कैसे आया? ये क्या जादू? ये क्या किया? किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड की तरफ। कितना आएगा? 45। ये कैसे किया वेदांत? ये मुझे नहीं समझ में आता। गजब हो गया यार, ये तो अल्टीमेट। कैसे हुआ वेदांत? अपोजिट डायरेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर वो क्या लग रहा है, क्या हो? अच्छा समझ गया। समझ गया? अच्छा, तो this vector ADT, right? This is the ADT vector. This vector is continuously being added to the velocity vector. Time t is equal to dt, 2 dt, 3 dt, 4 dt, 5 dt, 6 dt, और ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है। अल्टीमेटली ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। लेकिन ये ADT नहीं रुका है, ADT हैज नॉट स्टॉप्ड। तो अगर मैं 0 से ADT ऐड करूंगा तो क्या आएगा? मैं अगर मैं 0 पे ADT ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ADT नीचे की तरफ आ जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, और फिर उसमें ADT ऐड करूंगा तो क्या आएगा? अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? तो ये हो रहा, वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल, उसके बाद का वेलोसिटी वेक्टर, उसके बाद का वेलोसिटी वेक्टर, उसके बाद का वेलोसिटी वेक्टर जीरो। लेकिन इससे ADT ऐड हुआ, फिर ADT ऐड होते होते उसके बाद का वेलोसिटी वेक्टर, उसके बाद का वेलोसिटी वेक्टर, उसके बाद का वेलोसिटी वेक्टर, उसके बाद मोशन द ग्रेविटी। हाँ, मोशन द ग्रेविटी। नहीं, मैं तो केवल ये बोल रहा हूं कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये A वेक्टर है तो ये होएगा। अगर ये एक्सेलरेशन है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, this is the acceleration, this is the initial velocity, then you will keep on adding ADT to the initial velocity vector. You will not stop even if the velocity vector becomes zero. So this initial velocity vector will become zero. The particle will go up, 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 zero, highest point. And now, because you are always adding this ADT,
the velocity vector will become in the downward direction. And when that happens, the particle will now begin to move downwards. Right? And as time goes on, since you are adamantly you are adding this ADT, the velocity vector will now start to become bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. Right? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा अभिनव ने. तो अभिनव पूछ रहा है बताना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली. What I wanted to show using this was that when acceleration vector is opposite to the velocity vector, यही वो कार्टून जो PDF में है, when velocity vector and acceleration vector are opposite to each other, okay, then as time goes on, the magnitude of the velocity vector decreases. But if the velocity vector and the acceleration vector are in the same direction, then as time goes on, the velocity vector increases. It does not matter whether one is, it does not matter if we are talking about the positive or the negative direction, does not matter. If the velocity vector and the acceleration vector are like this, the final velocity is bound to increase. If the acceleration and velocity vector are like this, final velocity is bound to increase. If the acceleration is like this and initial velocity is like this, velocity is bound to decrease. If the initial velocity is like this and acceleration is like this, the final velocity is bound to decrease. So as I throw this pen up, the velocity of the pen as it leaves my hand is upwards. Acceleration is downwards. Therefore, its velocity begins to decrease until it reaches its highest point, where the velocity becomes 0. And beyond that, the velocity then flips direction, becomes in the downward direction. And now the direction of velocity and acceleration are same. Therefore, the velocity now increases in magnitude in this direction, but increases in magnitude. So those points are just locations. Velocity vector is being applied. Yes. After today's classes, can you post? क्या बोल रहा है अर्नव यार? बोला ना मैं तो गीता मैम से बोलना कर देंगे. Okay. Now let us apply this. So the particle has been thrown up with a velocity of u0, right? So first part, going up, u is equal to plus u0, a is equal to minus g. I'll just represent acceleration due to gravity as minus g. We must be absolutely clear on the fact that this direction is positive and this direction is negative. So first part, going up, u is equal to plus u0, a is equal to minus g, v is equal to 0 at the highest point, right? So I want to find two things here. The two things that I want to find maximum height, is maximum height, maximum height, okay, and the time taken to reach the maximum height. Time taken to reach maximum. Time to reach maximum height. So can you, in your copies, apply whatever equation you see fit and tell me maximum height, or basically displacement, and time. S and T. Can you tell me S and T? Given u is equal to plus u0, a is equal to minus g, v is equal to 0. Please tell me. So can the maximum height be half vt squared? Hmm? Half vt squared.
मेरे को केवल U नॉट और G के टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है ना? वेदांत का बिल्कुल सही है, आदित्य का बिल्कुल सही है। हाँ सर u²/2g। क्या सर चीज u बता नॉट रहा है? स्क्वायर बाय 2 मैक्सिमम हाइट। हाँ u0²/2g मैक्सिमम हाइट। हाँ सर मैंने आपको चैट में हाँ सर मिल गया ना, एडीटी भी दिखाई दे नीचे रहा है इंक्रीज हो रहा है ना? क्या? विद टाइम एडीटी भी सर नीचे इंक्रीज हो रहा है, लाइक 2 एडीटी 3 एडीटी वो भी इंक्रीज हो रहा है, फिर वो लाइक वैसे ही है अबे इंटरवल देखना, टाइम का इंटरवल कितना है, डीटी। इंक्रीज कैसे हो जाएगा? सर u0/g हो जाएगा टाइम। यस सर। ये सबको डिराइव करना है and I will be checking this on Friday, okay, when you submit derivation. सर इससे ही डिराइव किया ना v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 हाँ 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 सर वो और कुछ नहीं किया इक्वेशंस है। ऑफ मोशन से। v is equal to u हाँ plus सर at बस लगाया वैल्यूज है, फिर v पुट square करें equal to, हाँ बस that is और why v I'm इज saying इक्वल ना। टू u+at। वाले में s equal to u और plus सेकंड में v से आ इक्वल्स टू u जाएगा। प्लस हाँ v इज हाँ इक्वल टू हाँ u+at। s निकालने के लिए v square is equal to u square plus 2s and टाइम निकालने के लिए v is equal to u plus at, यस और सर। ये चीजें उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरे को आंसर। ये वेदांत तेरा रूट कहाँ से आ रहा है भाई? बट सर ये तो बस v is equal to 0 and a is equal to g ही, हाँ और कुछ नहीं करना। हाँ। ये वैल्यूज हैं u a v की, और मेरे को s की वैल्यू और t की वैल्यू चाहिए, बस दैट्स इट। सेकेंड पार्ट, कमिंग डाउन। इसको उधर कर प्रकाश। u इज इक्वल टू कितना होएगा, a इज इक्वल टू कितना होएगा, और s इज इक्वल टू कितना होएगा, कौन बताएगा मेरे को? सर u सर सर 0 u होगा, जीरो हो जाएगा, zero a होगा। equal to a minus और g s होगा। माइनस u नॉट स्क्वायर बाय 2g। नहीं a आराम माइनस से, g u होगा। a माइनस g होगा और a माइनस डिस्प्लेसमेंट g होगा माइनस u²/2g। माइनस u u नॉट नॉट u0 स्क्वायर। स्क्वायर square by बाय 2g। 2g। I hope everybody is understanding this. So Yes the sir. particle goes up and then the particle comes down. So this is the second part of motion. This is the first part of motion. यहाँ पे velocity is 0. Okay. v 0 नहीं होगा, क्यों भाई वेदांत? v क्यों नहीं 0 होएगा? v has to be 0, right? Because highest point पे पहुंच गया ना वो। सर तो First सेकंड केस में part इसकी is, जगह u0 हो जाएगा राइट? कुछ हाँ, नहीं। you have सर और v written मैक्सिमम रहेगा ना। माइनस जी। हाँ श्रीहरन कहाँ पे? सर टाइम क्या होगा करूं? रूट ऑफ u नॉट स्क्वायर बाय a g। सर इधर v मैक्सिमम रहेगा ना। नहीं नहीं, मैं पहले बताऊंगा मुझे क्या निकालना है, तब निकालोगे ना, अभी थोड़ा निकालना है। I will first in part 2 how is g negative. हाँ यही यही मैं, I was hoping that you would ask me this. Yes. Yes. Okay. So where is the earth guys in this case? Where is the earth? ये Down पार्टिकल को मैंने ऊपर सर फेंका है। नीचे। अर्थ कहाँ पे है? सर अर्थ नीचे डाउन। है, यहाँ पे है। So will you agree that while going up, the gravity of the earth is pulling it down, while coming down, the gravity of the earth is pulling it down? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अर्थ ऊपर चला गया, इधर आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। बोलो श्रीहरन, हर्षवर्धन। हाँ सर, समझ गया, क्यू नेगेटिव।
क्योंकि तो अर्थ नीचे नहीं नहीं नहीं, अभी पूरी पूरी बात सुन मेरी। अर्थ यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में अर्थ इज पुलिंग इट डाउन, सेकेंड पार्ट में अर्थ इज पुलिंग इट डाउन. So the force of gravity on the particle, whether it is going up or whether it is coming down, is down. Therefore, since this direction is taken as negative, acceleration is negative, this is telling me that, look, the acceleration is downwards. This is telling me acceleration is downwards. This is telling me that the earth is downwards. Therefore, the object is being pulled downwards. ओके सर, ठीक है ना? अंडरस्टूड. सर हमें क्या फाइंड करना है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं अभी, रुको रुको. नाउ आपके मन में क्यों आता है, why do you think कि a is equal to plus g लेना चाहिए? And I will tell you the टुवर्ड्स reason. ग्रेविटी जाना है. नहीं, I'll tell you the reason. I'll tell you the reason. So when you were taught this in class 9th or 10th, right, instead of teaching you the complicated fact that downward direction negative है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा ये नेगेटिव हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द टीचर एक्चुअली स्प्लिट द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स. नाउ वेदर द टीचर डिड दिस कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, आई डू नॉट नो, बट the teacher split the question into two parts, and for the first part the teacher took this convention, upar positive niche negative, and for the second part the teacher took the easy way out and said that, okay fine, for the second part let's take this direction as positive. If I take this direction as positive, then a is positive, s is positive, or jo bhi v aane wala hai, that is also positive, everything is positive. So I don't have to deal with so many negative quantities, and therefore we are very happy. This is what has happened, and this is the cause, this is the root of your confusion, and you must go, you must grow beyond this. Okay? जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम अपने कन्वेंशन, हम अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे. अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लिया हुआ है तो हमारे लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगा, whether we are going up or whether we are coming down. Okay, so I hope you understand the source of the confusion. Your teacher in class 9th and 10th, while talking about the motion, part of the motion coming down, your teacher automatically flipped the positive and negative signs, and therefore you got everything positive. And that is what is sort of drilled into your brain. ऊपर जाता है एक्सप्रेशन नेगेटिव, नीचे आता है एक्सप्रेशन पॉजिटिव. This is the reason. We are not going to do that. Okay. So what do I want to find here? I want to find मैं भूल ही गया कि क्या फाइंड करना है. If I take this as minus h, okay, if I take this as minus h, so this whole distance is h. H is equal to u naught square by 2g. Okay, it is equal. If I take this as minus h, then what I want is the velocity at bottom point. Okay. And time. सर टाइम सिर्फ सेकंड पार्ट? हाँ, सेकंड पार्ट सर सेम ही रहेगा u by g? बिल्कुल सेम रहेगा. यस. और सर वेलोसिटी आ रहा है माइनस u नॉट. माइनस u नॉट आएगा, बट आई वांट इट इन टर्म्स ऑफ h. ओके सर. I want it in terms of h, final velocity. As you said, velocity is decreasing upward, but according to calculation 2d 3d 80. क्या बोल रहा है ये? I got root u naught square plus
फाइनल वेलोसिटी रूट 2gh। जी और एच के टर्म्स में वो सर 2gh आ रहा है, equal to 2gh। आ रहा है। मेरे को यही चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था, रूट 2gh एंड टाइम विल बी सेम, राइट? यस सर। मेरे को एक और चीज चाहिए। आई वांट अनदर थिंग फॉर द सेकंड पार्ट। आई वांट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकाल दिया ना, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी निकाल दिया ना। हाँ ठीक है, सर आपको -√2gh क्यों आ रहा है? क्या है? सर सर वो प्लस माइनस साइन, सर पॉजिटिव आएगा ना √2gh। सर प्लस e square is equal to u square plus 2s ना। सर माइनस साइन कट हो जाएगा ना दोनों सर साइड। माइनस माइनस मल्टीप्लाई सर प्लस जी हो भी जाएगा ना। माइनस है और एस भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। v square is equal to root 2 v square is equal to 2gh आया ना। हाँ सर, तो v is equal to कितना हुआ? प्लस plus माइनस minus प्लस माइनस √2gh। प्लस माइनस रूट 2gh और सर v नीचे है इसलिए नेगेटिव b हो नीचे जाएगा। इसलिए नेगेटिव लेंगे। ओके सर। सिंस इट इज डाउनवर्ड इसलिए मैंने नेगेटिव किया। माइनस साइन हियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके सर वो जो आपने कहा जो छोटा हो रहा है ऊपर जा के, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए डी टी माइनस ए डी टी करें, जब हम ऐड करें डी टी माइनस ए डी टी फिर 2 डी टी माइनस ए डी टी, मतलब तूने बोला कन्वेंशन है तो सब सही, और जो 500 साल से जो साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वो सब गलत है। ऐसा नहीं है सर, आप बताओ ना। हाँ क्या बताओ ना, क्या पूछ रहे हो? डी टी माइनस ए डी टी हम लोग वो ऐड कर रहे हैं तो वो dt माइनस ए dt तो मैंने कहीं नहीं किया। ऐड कर रहे हैं ना सर, ए डी टी तो सर नीचे है ना, तो वो नेगेटिव है ना, तो ऐड इसमें वो 2 डी टी माइनस ए डी टी होगा ना। 2 dt कहाँ से आया तेरे पास? 2 डी टी जब वो यू सेकंड प्लस एडीटी कर। हमेशा ए dt ऐड होएगा ना, टाइम इंटरवल हमेशा dt का हम देख रहे हैं ना। हाँ आपकी एज क्या है अभी? 16। नहीं नहीं, 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस ये होना चाहिए ना। ये साल एज 16 है ना तेरी, लास्ट ईयर कितनी थी? 15। तो ऐड करेगा ना उसको। उससे पहले कितनी थी? 14। उसको भी ऐड करेगा। कितना आया? 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस, यही तो एज हुई ना। नहीं। क्यों? तेरी एज 100 साल नहीं है भाई? एज कैसे कैलकुलेट किया बता ना। माइनस क्या सर? 16 माइनस 1, 15 माइनस 1। 16 माइनस 1, 15 माइनस 1। जब एक साल का इंक्रीमेंट होता है तो आपकी एज एक साल से बढ़ जाती है ना, यही तो सर होता है। जीरो से हाँ, एक मुझे एक याद साल है। ऐड करते रहते। हाँ जीरो से एक एक साल ऐड करते रहते हैं। हाँ पक्का ना? तूने कुछ और तो नहीं किया है बे? नहीं नहीं। यही किया ना? हाँ तो यहाँ पे भी जीरो से केवल dt ऐड करते रहते हैं। dt dt 2 dt कैसे आया? डी टी प्लस डी टी 2 डी टी। हाँ तो वो समझ गया सर, लेकिन 2 dt यहाँ नहीं रखना है, यहाँ केवल dt ही आएगा। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी उसकी वेलोसिटी है प्लस ए dt ही आएगा। dt इंटरवल में ही एक्सेलरेशन उसको वेलोसिटी को चेंज कर रहा है ना, 2 हाँ, dt में नहीं कर रहा है ना। हाँ dt में ही चेंज कर, तो dt में तो ए डी टी तो सर वही है ना, डी टी माइनस ए डी टी तो बराबर हो रहा है ना सर, इसका मतलब। dt माइनस ए dt क्या बोल रहा है? dt माइनस ए dt क्या होता है? डी टी से ऊपर है और ए डी टी नीचे है, तो दोनों का ऐड करेंगे ना वेक्टर dt ऊपर है क्या?
dt कौन अपोजिट सा dt ऊपर है? dt वेक्टर होता है, स्केलर होता है? स्केलर है सर, लेकिन वेलोसिटी में कह रहा हूँ, वेलोसिटी से dt लिया ना आपने। वेलोसिटी से dt लिया है? वेलोसिटी dt नहीं लिया है, चेंज इन टाइम dt लिया है। सतगुण तो शांत क्यों है? अब इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है बे? सर मैं आद्विक हूँ। हाँ मालूम है आद्विक। आद्विक और सतगुण मिलके प्लीज इसको बताओ ना क्या बोल रहा है। यस सर बताते हैं। हाँ सर। तब चुप क्यों हो गए बताओ ना। मुझे समझ ही नहीं आया क्या पूछ सर रहा है उसका सर। क्वेश्चन नहीं सर समझा सर उसके लिए एक डाउट सेशन रख दो अलग से। सर मेरे को उसको सर ढक के सब बेहोश हो गए। समझना क्या चाह रहा है। पता नहीं क्या पूछ रहा है इधर। क्या अब वो पूछ रहा है सिर्फ यही वेदांत? क्लियर कर रहा था कि dt आपने ऊपर लिया है, adt नीचे लिया है, क्या ऐसा कुछ बोल रहा था। इनिशियल वेलोसिटी वेदांत ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है। इस वेक्टर से dt मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर मिला। इस वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से ऐड किया तो ये मिला। इससे फिर से adt ऐड किया तो ये मिला। इससे फिर से adt ऐड करेंगे तो इससे छोटा मिलेगा। फिर adt ऐड करेंगे तो और छोटा मिलेगा। करते 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 जीरो हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई अजूबा चीज थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है सर, dt मतलब dt प्लस ए dt हो गया फाइनल वेलोसिटी, फिर आपने ठीक है समझ गया, dt प्लस ए dt ना। dt प्लस ए dt क्या बोल रहा है? dt कहाँ से ए dt क्या कर रहा है? वेदांत भाई dt जो है ना तेरा चेंज इन टाइम है, उसमें कुछ वेलोसिटी ट्रैवल किया है, उससे तू एक्सेलरेशन हटा रहा है क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है ना तेरा। जो तेरा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है ना। तो इन शॉर्ट तेरी वेलोसिटी कम हो रही है, बस इतना समझ ले इधर से। चलो ये कंटिन्यू करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ओके सर। होमवर्क में प्लीज ट्राई टू कंप्लीट लेक्चर 4 सर के जो लेक्चर 3 लेवल 2। लेक्चर 3 लेवल 3। लेक्चर 3 लेवल 2 तो करना ही है ना, वो सैटरडे को सबमिट करना है ना। हाँ हाँ सर। सर। लेक्चर 4 पीडीएफ जब आप देखोगे ना, लेक्चर 4 पीडीएफ, हाँ सर। तो उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस मैंने दिए हुए हैं। अच्छा हाँ वो ब्लैंक स्पेसेस को अपनी कॉपी में फिल करना है, ठीक है सर। है ना। उसमें एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहो तो वो एग्जाम्पल पहले से कर सकते हो। इफ यू डू दैट आई विल बी वेरी हैप्पी। इफ यू डोंट, कोई इशू नहीं है। सर वो ऑरेंज बॉक्स कह रहे हैं। हाँ ऑरेंज वाले बॉक्सेस है ना जो। सर एक ही है उसमें, ठीक है कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ वो एक ही है तो एक ही है। ओके सर। सर वो रिकॉर्डिंग के लेकिन लिए मैम को बोलना है ना। हाँ गीता मैम को बोलना। और क्या बोलते हैं ये टाइमिंग मुझे चेंज करना। अच्छा फ्राइडे को सैटरडे करना है ना, वो मैं कर दूंगा, मत चिंता करना। तो लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 1 लेवल 2 जो है आपको सबमिट करना है व्हेन सैटरडे इवनिंग में। टाइमिंग उसमें अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट ट्यूसडे का होमवर्क लेक्चर 4 का ट्यूटोरियल और एग्जाम्पल होने जा रहे हैं। तो अगर आप पहले से कर लो बहुत अच्छा है, बाद में करना है तब भी बहुत अच्छा है। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू। Thank you, sir.